Now, Yeah, now you are visible and audible. So, so how are you? I'm good. And what's about you? I'm also good. And first, we are talking very first time. So introduce yourself little bit. Yes, yes. I would like to introduce myself. Let me introduce myself. My name is Nidhi. I live in New Delhi. As far as my educational qualification concerns, so I have done post graduation. After that, I have done B.Ed, and nowadays I'm learning English to improve my communication skills. That's all about me. Okay, nice. So it's my turn. Yes, As yes. you know, my name is Geeta Chaudhary, and I live in Dura, nearby Fatehpur Sikri. And I'm married. I have two kids, one daughter and one girl. My daughter is 8 year old, and my son is 4 year old, and both are go to school. And this time I'm learning English because I want to make environment for my kids. So that's why. If you talk about my qualification, I have completed my 12th class in 2014. And if you talk about my hobbies, I like teaching, dancing, and watching video content, and anything like that's it. That's great. Very nice to hear that. And Yeah. how have you been in this language? What? How have been you learning this language? When did you start your journey of spoken English? Yeah. Because your voice is not clearly, so that's why I can't listen. Yeah. So I have started my learning journey 1 year ago. You can see my YouTube channel journey 1 year ago, but speaking journey only 3 and 2.5 month ago only. Yeah, Okay, my YouTube that's channel great. is 1 year ago. I think some network is you are can we start from the beginning? Yeah, you know, today we will make video like a present tense. Okay. I make the two video. I made two video present simple. Yeah, you can say affirmative sentence and interrogative sentence, negative sentence. But today we will practice like a affirmative, negative, interrogative, and WH. Okay. Okay, Yeah. so So can start. yeah, first we should start like a simple affirmative and negative little bit because that time I made that video. That time I practice in full video, but starting it's practice. Okay, Okay, yes, yes, so can I ask some question? yes, yes, sure. Okay, you can say मैं खाना खाती हूँ. ये Okay, मैं हिंदी में बोलूँगी क्योंकि मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो वरना करना चाहते हैं पहली बार। सो mhm, वो पूछ रहे थे कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो उस तरीके से मैंने सिंपल टेंस की प्रैक्टिस वीडियो बनाई थी, देन उसके बाद नेगेटिव की बनाई थी। तो अब हम जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों की करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी-सी प्रैक्टिस करेंगे इंटर नेगेटिव की ओनली अफ़र्मेटिव की, ओके? okay, तो जो जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि सिंपल अफ़र्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, उसमें डायरेक्ट या कैसे सब्जेक्ट होता है और एक्शन होता है। उसे हम अफ़र्मेटिव सेंटेंस में बोलते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो। मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। सो और नेगेटिव बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में सब्जेक्ट लेते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, देन मेन वर्ब लेते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसमें सबको पता है। लेकिन जब अफर्मेटिव होता है तो हम सिंगुलर के लिए एस और ईएस प्रयोग करते हैं मेन वर्ब में, और जब प्लूरल होता है तो हम एस या ईएस को नहीं यूज करते हैं, मतलब सिंगल रहने देते हैं। और जब नेगेटिव बनाते हैं okay, तो नेगेटिव बनाते समय हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। डायरेक्टली जो हमारी मेन वर्ब होती है हम उसे पुट कर देते हैं। तो ये मैं पहले okay, बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से बताना ज़रूरी है क्योंकि कुछ नए सब्सक्राइबर जो जुड़े हैं, उन्हें भी नॉलेज आ जाए इससे, है ना? तो वैसे मैं ये किसी को पढ़ा नहीं रही हूँ, पर ऐसा है ना, जैसे जो मुझे आता है, मैं अगर किसी के साथ शेयर करती हूँ, तो लोगों को अच्छे से yes, समझ में आता है और मेरी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाती है। वैसे तो yes, बच्चों को पढ़ाती है, तो प्रैक्टिस ऑलरेडी हो जाती है, बट लेकिन शेयर करने से भी जो हमें
झिझक रहती है बोलने में, वो मतलब एक यूज़फुल हो जाती है ना? यस यस। या जैसे मैं जाता हूँ, तो हम इसे बनाएँगे आई गो, एक्शन ओ एंड यू कैन से सब्जेक्ट एंड एक्शन। अगर मैं बोलूँ मैं घर जाता हूँ, तो आई गो टू होम, जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो। और अगर एक ही जगह बोलते हैं, जैसे मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन किसी दूसरी जगह जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अगर हम इसी में नेगेटिव बनाना चाहें, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, देन मेन वर्ब यूज़ करेंगे, देन अदर वर्ब। तो जैसे मैं घर नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल होम। अगर मैं ये सिंगुलर के लिए बोलूँ, किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी नाम के लिए, जैसे राम घर नहीं जाता है, तो हम वहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल के लिए डू का और सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग करते हैं। तो मैं बोलूँगी, आप मतलब सेंटेंस कंप्लीट करना, ओके? जैसे मोहित घर नहीं जाता है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। या तो मोहित घर नहीं मोहित जाता है, इसे हम कैसे बोल सकते हैं? मोहित डज नॉट गो टू होम। या और मैं बोलूँ सीता स्कूल नहीं जाती है, सीता डज नॉट गो टू स्कूल। क्योंकि ये सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे डज का प्रयोग किया। और प्लूरल जैसे मैं तुम्हारे लिए बोलूँ, अपने लिए जैसे मैं बोलती हूँ मैं लगाकर बोलूँ, या तुम्हारे लिए तुम लगाकर बोलूँ, या हम दोनों के साथ में बोलूँ, जैसे हम वहाँ जाते हैं, या वे बोलूँ, दे के लिए भी हम प्लूरल यूज करते हैं, क्योंकि दे एक से ज्यादा लोग होते हैं, तभी तो बोलते हैं वे लोग। तो वहाँ पर भी हम डू का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मैं एक-एक यस। करके, जैसे हमने थर्ड पर्सन के लिए ले लिया, मैं के लिए ले लिया, अपने लिए ले लिया। अब हम तुम के लिए और वे के लिए यूज़ करेंगे। जैसे तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड। या यू कैन से दे ईट फूड, तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड। तो यहाँ पर हमने मेन वर्ब में कोई भी एस या ईएस नहीं लगाई, क्योंकि हम प्लूरल है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैं बोलूँ तुम खाना नहीं खाते हो, यू डू तुम नॉट ईट। या तो यहाँ पर भी हमने एस या यस का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ चुकी है। जैसे हम हम नहाते हैं, वी टेक अ बाथ। क्योंकि यहाँ पर हम नहाते हैं, तो हमने प्लूरल का यूज किया, और ये भी अफर्मेटिव है, तो हमने एस या यस का यूज नहीं किया, क्योंकि प्लूरल है। और हम नहीं नहाते हैं, वी डू नॉट टेक अ बाथ। या तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली। तो अब हम इंटेरोगेटिव की, जैसे हमें क्वेश्चन पूछना हो किसी से, तो किस तरीके से करेंगे? तो उसके लिए जो जैसे स्ट्रक्चर होता है, वो होता है, अगर हम किसी को डायरेक्टली ये पूछ रहे हैं, जैसे क्या आप खाना खाते हैं, क्या आप पानी पीते हैं, क्या आप वहाँ जाते हैं, तब सिर्फ हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे फर्स्ट में रख देते हैं, देन सब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। तो ये अगर हमें यही पूछना है, सिर्फ क्या से स्टार्ट करके कुछ पूछना है, तो हम डब्ल्यू एच वर्ड ना लगा कर के पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। अगर हमें किसी से रीजन पूछना है, तुम वहाँ क्यों जाते हो, तुम वहाँ कब जाते हो, तुम वहाँ कैसे जाते हो, तब हम डब्ल्यू एच वर्ड को पहले रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, देन सब्जेक्ट पुट करेंगे। अदर वर्ड जो होते हैं वो उन्हें बाद में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या से लेकर पूछते हैं, जैसे क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट फूड। क्या तुम पानी पीते हो, डू यू ड्रिंक डू यू वाटर, ड्रिंक वाटर। यस। हाँ, क्या तुम नहाते हो, डू यू टेक अ बाथ। या जैसे तुम्हारे लिए मैंने पूछ लिया, अब मैं पूछूं मेरे लिए, क्या मैं स्कूल जाती हूँ, डू आई गो टू स्कूल। या क्या मैं पानी पीती हूँ, डू आई ड्रिंक वाटर। क्या मैं बाल काटती हूँ, यानी कि कॉम करती हूँ, डू यू डू आई डू आई कम माई हेयर। माई हेयर बोल सकते हैं, बट ये सीधा भी बोल सकते हैं, डू आई कॉम, कम। बिकॉज यस कॉम यस। करना एक, या कंघी करना या बाल काटना एक ही बात हो गई। क्या मैं या हाँ, क्या मैं खाना बनाती हूँ,
Do I prepare food? या मेक भी बोल सकते हैं, कुक भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें तीनों चीज़ें ठीक है। हाँ, तो क्या मैं खाना खाती हूँ? Do I eat food? तो ये हमने मैं के लिए भी यूज़ कर लिया, तुम्हारे लिए भी यूज़ कर लिया। अगर हम के लिए बोलना चाहें तो हमसे जैसे क्या से कोई क्वेश्चन करना है हमारे लिए, क्या हम खेलते हैं? Do we play? या क्या हम खाना बनाते हैं? Do we make food? या क्या हम बातें करते हैं? Do we talk? क्या हम कूदते हैं? Do we jump? तो यहाँ पर हमने वी के लिए भी यूज़ कर लिया, जो कुछ भी करना है वी के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, डू से स्टार्ट किया क्योंकि ये प्लूरल है। और Hmm. अब हम दे के लिए यूज़ करेंगे, जैसे एक से ज़्यादा लोग हैं तो हमें उनके बारे में अगर बात करनी है तो हम कैसे करेंगे? क्या से क्वेश्चन करना है तो क्या वे खेलते हैं? Do they play? क्या वे पढ़ते हैं? Do they read? क्या वे सुनते हैं? Do they listen? क्या वे किताब पढ़ते हैं? Do they read a book? या क्या वे तैयार होते हैं? Do they get ready? तो हमने ये चारों के लिए प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, वे के लिए, दे के लिए, यू के लिए और आई के लिए। तो ये प्लूरल हैं तो इनके साथ हमने डू का यूज़ किया। अब सिंगुलर के लिए जैसे हम थर्ड पर्सन की, अगर हम दोनों बैठे हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में हमें बात करनी है कि वह लड़का ये करता है, वह ये नहीं करता है, क्या वो ये करता है? तब हम डज़ को फर्स्ट में रखेंगे क्योंकि डज़ सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। तो जैसे Mhm. मैं पूछूँ क्या वह पढ़ती है? Does she read? क्या वह खेलती है? Does she play? क्या वो नाचती है? Does she dance? यहाँ पे हमने लड़की के लिए बोला तो सी का यूज़ किया, अगर हम लड़के के लिए बोलते तो बस ही का यूज़ होगा, सेम यही होगा। डज से स्टार्ट करेंगे बट सी की जगह पर ही का यूज़ करेंगे। देन जो भी हम पूछ रहे हैं किस काम के लिए, वो जो काम कर रहा है उसको एक्शन बना के रख देंगे। सेम स्ट्रक्चर रहेगा। अगर हमें यहीं पर WH वर्ड पुट करके पूछना है, जैसे कि वह वहाँ क्यों जा रही है? तो हम पूछ सकते हैं वह वहाँ क्यों जा रही है? तो क्यों के लिए हम व्हाई का यूज़ करते हैं, तो व्हाई को हम फर्स्ट में रखेंगे। फिर हम बात किसकी कर रहे हैं कि क्यों जा रही है, लड़की की बात कर रहे हैं तो सी का यूज़ करेंगे। व्हाई फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि वह के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम डज़ का यूज़ करेंगे। व्हाई डज़ ही सी गो देयर? तो वो वहाँ जा रही है, तो ऐसे करके हम पूछेंगे। तो जैसे अब मैं पूछूँ क्या वह क्या पढ़ रही है? तो What ये does she read? या व्हाट का प्रयोग हमने क्यों किया? क्योंकि यह जैसे अगर हम फर्स्ट में क्या लगाते हैं, किसी से पूछते हैं क्या यह काम कर रही है, तब हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रखते हैं। और जब बीच में क्या शब्द आता है, जैसे वह क्या कर रही है, वह क्या खा रही है, तब हम व्हाट का प्रयोग करते हैं फर्स्ट में। Mhm. तो जैसे अभी तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ, लेकिन जब वीडियो तैयार हो जाएगी तो मैं यहाँ पे जो कुछ भी हम इंग्लिश में बोलेंगे, जो कुछ भी हम हिंदी में बोलेंगे, वो सब कुछ नीचे लिखा हुआ आएगा। तो जो लोग देखेंगे ना इस वीडियो को, वो अच्छे से, अगर उन्हें बनाना नहीं आ पा रहा है, तो वो सीखने के लिए हमें सुनेंगे और सुनने के बाद जो नीचे लिखा हुआ है उसे बोलेंगे तो उनकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, है ना? तो जैसे अब वह क्यों खा रही है? Why does she eat? या तो वहां पे हमने क्या यूज किया? वाई, क्योंकि वो क्यों की बात हो रही है, तो वाई डज Mhm. लड़की के लिए जो सिंगुलर है, सी हमने लड़की के लिए लगाया, देन पुट ऑन कर दिया सब कुछ। तो ऐसे ही हमें अगर तुम्हारे लिए पूछना है तुम वहां क्यों जा रहे हो, तो हम डू का प्रयोग करेंगे, देन फर्स्ट में वाई, फिर डू, फिर यू। तो ये Yes. हो जाएगा तुम वहां क्यों जा रहे हो। तो इसे कैसे बोलेंगे? Why do you go there? या तुम वहां क्यों सो रहे हो? Why do you why do you sleep there? स्लीप। स्लीप Yes. ओनली वहाँ सोने के लिए बोलना है तो यार सोने के लिए बोल दो, सिर्फ स्लीप। जैसे हाँ, अब वाई के लिए हमने समझा तो वाई हमें समझ में आ गया वाई का मतलब क्यों होता है। जैसे हमें कहाँ पूछना है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ का मतलब वेयर, वेयर मतलब कहाँ के लिए हम वेयर का यूज करते हैं,
तो तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर डू यू गो? या तो यहाँ पर हमने वेयर का यूज कर लिया क्योंकि ये WH फैमिली है, तो वेयर, व्हेन, विच कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि ये सभी WH फैमिली है। इनका इस्तेमाल हम जैसे करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में WH वर्ड आएगा, देन हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आएगा कर्ता के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी प्लूरल है या सिंगुलर है, एक वचन है या बहुवचन है, जिस तरीके से होगा उस तरीके से हम यूज करेंगे। तो आई होप जो लोग देख रहे होंगे उन लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, और हम लोग भी प्रैक्टिस अपनी अच्छे से कर रहे हैं, तो इसी तरीके से अब मैं सबको मिलाकर बोलूंगी, ओके? आई तो डोंट जैसे अगर अंडरस्टैंड। अब मैं सबको मिलाकर पूछूंगी क्या WH वर्ड से, तो जैसे हम बोल सकते हैं उस तरीके से स्लोली पे बोलना, जिससे कि जो लोग न्यू है वो समझने में आसानी रहे उनके लिए, ओके? या तो जैसे मैं पूछूं, क्या क्या यस। तुम खाना खाते हो? क्या तुम खाना खाते हो? डू यू ईट फूड? क्या तुम पानी पीते हो? डू यू ड्रिंक वाटर? क्या तुम्हारी माँ खाना बनाती है? डज योर मदर कुक फूड? नहीं, मेरी माँ खाना नहीं बनाती, मैं खाना बनाती हूँ। नो, माई मदर डज नॉट कुक फूड, आई कुक फूड। या क्या तुम्हारी बहन खाना बनाती है? डज योर सिस्टर कुक फूड? तो जो लोग देख रहे हैं, अब हम तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या वह काम करती है, तो वह जो लड़की है या लड़का है, किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, डज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम डज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो सिंगुलर है। अगर मैं पूछती हूँ क्या तुम खाना बनाती हो, तो वहां पर डू का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो डज का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से, मतलब अगर किसी को समझ ना आए तो वो वीडियो को वापस करे, वापस करने के बाद फिर से स्टार्ट कर ले, जहाँ पे दिक्कत लगे वहां से दोबारा देखने के बाद उससे शायद आई थिंक अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो वैसे मैं लिख कर दूंगी तो समझ में वैसे भी आ जाएगा। अ, हम खाना क्यों खाते हैं? वाई डू वी ईट फूड? हम नाचते क्यों हैं? वाई डू वी डांस? अ, हम कहाँ जाते हैं? वेयर डू वी गो? तुम कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो? तुम कब पढ़ते हो? व्हेन डू यू स्टडी? तुम क्यों पढ़ते हो? व्हाई डू यू स्टडी? तुम कहाँ पढ़ते हो? वेयर डू यू रीड? वेयर डू यू स्टडी? या वेयर डू यू स्टडी, मतलब अब हमने तीनों चीज का कहाँ, क्यों, कैसे, सब कुछ इसमें यूज कर रहे हैं, तो बस इनकी मीनिंग आ जाए, फिर जो हमें सेंटेंस बनाना है WH वर्ड को जोड़ने के बाद वो इजी से बन जाएगा। कब, क्यों, कैसे, इनकी भी मैं एक यू कैन से vocab इसमें डाल दूंगी, जिससे कि जो WH वर्ड के बारे में नहीं जानता है उसे WH वर्ड के बारे में पूरा पता चल जाएगा। जैसे वाई को क्यों के लिए यूज करते हैं, व्हेन को कब के लिए यूज करते हैं, वेयर को कहाँ के लिए यूज करते हैं, हाउ को कैसे के लिए यूज करते हैं, तो ये सारे वर्ड मैं इसमें पुट कर दूंगी, तो जो भी देखना चाहेगा उसे समझ में आ जाएगा। तो हम कहाँ जाते हैं? वेयर डू वी गो? हम कहाँ खेलते हैं? वेयर डू प्ले? वेयर डू वी प्ले, हम कहाँ खेलते हैं। एंड तुम कहाँ सोते हो? वेयर डू यू स्लीप? अगर हमें पूछना है, जैसे हम ये इसी प्रेजेंट टेंस में आते हैं, जैसे तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो हम इसे इन विच क्लास से विच स्टार्ट करेंगे। क्लास डू यू रीड? विच या क्लास डू यू डू यू, स्टडी? या हम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, बस यहाँ पे डू का ही प्रयोग हो जाएगा। और जैसे हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे डज का प्रयोग होगा। बेट सेकंड जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो वही रहेगा, इन विच क्लास डज ही स्टडी, यानी कि वह कौन सी क्लास में पढ़ता है।
अगर हम लड़के के लिए पूछ रहे हैं तो ही का यूज करेंगे, लड़की के लिए जो पूछ रहे हैं तो सी का यूज करेंगे। बट वहां पर लगेगा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो डज ही लगेगी, क्योंकि सिंगुलर के लिए डज ही प्रयोग करेंगे। वैसे जो आगे हमें पूछना है क्यों, कौन सी क्लास में, कहाँ, वो सब हमारा आगे आएगा सबसे फर्स्ट में। तो आई होप जो लोग देखेंगे उन्हें समझ में आ जाएगा। एंड you have you feel like your cup is very high. Yes, I don't know. I think we stop this video because you should rest. So Okay, okay, you uh, this video, yeah, you will edit this video before upload. yeah, I can upload. Okay, Yes, okay. Cut some parts, my golden cup. yeah. I Okay. because it's missing part is cutting. Okay, so Yes, bye. Nice to meet you. This video is very good for learner and how to start starting. So that's why it's a nice conversation with you. Okay, bye. Okay, yes. Same. Health is so and good take to care. have, but my health is not good. That's why I'm not. Yeah, you should take cough syrup. Yes. Yeah. You are Okay, bye. doing so. I have, I have get idea from you that. Yeah. Okay. Thank you so much.